ایک گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے جن کا نام کرم تھا۔ وہ بہت غریب تھے۔ ایک دن گاؤں میں اتنی سخت خشک سالی آئی کہ لوگوں کو بھوک سے مرنا پڑا۔ ان بھائیوں کی حالت پہلے ہی خراب تھی اور خشک سالی کے بعد تو بالکل برباد ہو گئی۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ تو آخرکار تینوں بھائیوں نے سوچا کہ گاؤں چھوڑ کے باہر جا کر کام کی تلاش کریں گے اور کچھ پیسہ کما کے واپس آئیں گے۔ رات ان تینوں کو ایک درخت کے نیچے بھوکے سو نبرا پڑا۔ ایک مہربلے دن اٹھ کرانی اپنا وہ کام کی تلاش متن بھی میں نکل پڑی۔ جبھی تاکہ میں وہ ایک اس کا پہا ترجمہ سیا کر گزر سکوں رہے تھے تو انہیں سورج کی روشنی میں وہ پہاڑی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ تینوں بھائی جب اس پہاڑی کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑی تو چاندی کی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا بھائی بولا، مجھے اپنی چاہت کی چیز مل گئی۔ میں اس میں سے بہت ساری چاندی اپنی چادر میں باندھ کر واپس اپنے گاؤں جا کر چین کی زندگی گزاروں گا۔ شہر جا کر اپنی زندگی برباد کرنے میں کیا فائدہ؟ اتنا کہہ کر اس نے اپنی چادر کھولی اور جتنی چاندی وہاں سے لے لی۔ بڑے بھائی سے بہتر پانا چاہتے تھے تو انہوں نے اس چاندی میں سے کچھ نہیں لیا اور شہر جانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ دونوں بھائی پانی پی کر جی رہے تھے کیونکہ کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اسی طرح وہ 2 دن اور اپنے نصیب کی تلاش میں چلتے رہے۔ 2 دن بعد جب وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو انہیں کچھ چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ جب وہ چمکتی ہوئی چیز کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں وہ اتنی چادر میں بھر کر واپس اپنے گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن باقی دونوں چھوٹے بھائیوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے براکرم ٹیکسٹ بھیجے میں اس کا ترجمہ کر دوں گا سونے کی پہاڑی ہے۔ دوسرا بھائی سونے کی پہاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے چھوٹے بھائی سے بولا، مجھے جس چیز کی خواہش تھی وہ مجھے مل گئی، اب مجھے کہیں اور نہیں جانا۔ میں اسی میں سے کچھ سونا لے کر اپنے گاؤں واپس چلا جاؤں گا اور گاؤں میں ایک سونے کی دکان کھول کر آرام کی زندگی گزاروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پھٹی ہوئی چادر زمین پر بچھائی اور جتنا سونا آیا اٹھا کر اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ سب سے چھوٹا بھائی بولا، چاندی اور سونا ان دونوں میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ابھی اور اپنے نصیب کو آزمانا چاہتا ہوں شاید، اور شہر کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے اسے 3 دن گزر گئے۔ وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل اتنا بڑا اور گھنا تھا کہ اسے باہر جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ بھوکا پیاسا اسی جنگل میں بھٹکنے لگا۔ اس نے ایک اونچے درخت پر چڑھ کر دیکھنا چاہا کہ اس جنگل سے باہر جانے کا راستہ کہاں ہے، لیکن اسے درختوں کی اونچی اونچی چوٹیوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ درخت سے نیچے اترتے ہوئے وہ خدا سے دعا کرنے لگا، کاش چھوٹیے میں نے تم دونوں سے بہتر کوئی چیز مل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بڑے بھائی کو الوداع کہا، کچھ کھانے کو مل جاتا بغیر کچھ کھائے پائے تو میں تو اسی وقت مر جاؤں گا۔ اسی وقت اسے ایک درخت کے نیچے ایک گندے کپڑے پر کچھ کھانے کا سامان پڑا ہوا نظر آیا۔ پہلے تو اس کی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، مگر جب قریب جا کر دیکھا تو واقعی کھانے کا سامان تھا۔ اس جنگل میں اتنا اچھا کھانا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اس کھانے کو خدا کی رحمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑا اور تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ کھا گیا۔ بھوک سے اتنا پریشان تھا کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کھانا کس کا ہے اور یہاں کیسے آیا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا۔ برا کرم متن فراہم کریں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ایک گندے کپڑے کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے رات ہونے لگی اور اب اسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کپڑے کو بچھا کر خدا سے دعا مانگوں۔ اس نے کپڑا بچھایا اور آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کپڑے پر مختلف قسم کا کھانا موجود تھا، سامان رکھا ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی محنت بے فائدہ نہیں گئی۔ اسے اپنے دونوں بھائیوں سے اچھی چیز مل گئی ہے۔ اگر وہ اور محنت کرے تو اس سے بھی بہتر کچھ مل سکتا ہے۔ یہ گندا کپڑا کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ ایک جادو تھا۔ یہ کپڑا تھا لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہوا اور بھی زیادہ پانے کی خواہش میں آگے بڑھتا رہا۔ اچھے نصیب کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتا رہا۔ گھومتے گھومتے وہ ایک اور جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو لکڑی سے کوئلہ بنا رہا تھا۔ وہ کھانے کے لیے انہی جلتی ہوئی لکڑی برا کرموں پر وہ متن لوہے فراہم کریں کہ کاف جس کائلی برتن میں اب تر بغیر چھیل کے جمع آلو چاہتے ہیں ابال رہا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر وہ بولا، تمہیں اس سنسان جگہ میں رہنا برا نہیں لگتا؟
तुम रोज रोज उबले हुए नमकीन आलू खाने से कभी बेजार नहीं होते। कोयला बनाने वाला बोला, हमारे लिए तो हर दिन एक जैसा है लड़के। इसने पूछा, आज तुम मेरे मेहमान हो, क्या तुम मेरे साथ शाम का खाना खाना चाहोगे? इस आदमी ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे खाने में से कुछ नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए है। अगर मैं भी खा लूंगा तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। लड़के ने कहा, फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हें खाने के लिए बुला रहा हूं। ये कहकर लड़के ने अपनी जेब से एक गंदा कपड़ा निकालकर जमीन पर बिछाया और हाथ जोड़कर दुआ करने लगा। देखते ही देखते इस कपड़े पर अच्छे अच्छे खाने के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला बस देखता रह गया। बराए मेहरबानी अपना मतन फराहम करें। वो मजदूर सब कुछ देखता रह गया। इसको जिंदगी में पहली बार इतना मजेदार खाना खाने को मिला था। मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो जो मुझे इस जंगल में भी इतना अच्छा खाना खुला सके, तो मैं तुम्हें एक जादू का थैला दूंगा। ये थैला मेला और फटा हुआ जरूर है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी ताकत छपी हुई है। तुम मुश्किल वक्त में जितनी बार इस थैले को तेपते पाओगे, इतनी बार 6 ताकतवर आदमी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तुम उन्हें जो भी हुक्म दोगे वो सब के सब पूरे करेंगे। लड़का इसको अपना कपड़ा देने के लिए राजी हो गया। वो अपना कपड़ा उसके हाथ पर रखकर उसका जादुई थैला लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद वो इस जादुई थैले की हकीकत जांचना चाहता था। इसने थैले को थपथपाया तो उसके सामने 6 सिपाही आकर खड़े हो गए और पूछने लगे, हमें क्या हुक्म है मालिक? लड़के ने कहा, इस कोयले बनाने वाले मजदूर से मेरा जादुई कपड़ा वापस लाओ। ये सुनकर वो 6 सिपाही फौरन इसका जादुई कपड़ा वापस ले आए। लड़के ने कहा, इस कोयले बनाने वाले मजदूर से मेरा जादुई कपड़ा वापस लाओ। ये सुनकर वो 6 सिपाही फौरन इसका जादुई कपड़ा वापस ले आए। जादुई कपड़ा और जादुई थैला लेकर वो फिर कुछ और अच्छा हासिल करने की ख्वाहिश के साथ चल पड़ा। इसे पूरा यकीन था कि अपनी मेहनत और अक्ल से वो कुछ कर सकता है। बिल्कुल। बरा करम टेक्स्ट भेजें। बरा करम मुझे वो मतन भेजें जिसका आप तर्जमा चाहते हैं, इससे भी बेहतर हो सकता है। सूरज गुरूब होने से पहले वो एक दूसरे कोयला बनाने वाले के पास पहुंचा। वो मजदूर भी जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के बर्तन में कुछ आलू अपने रात के खाने के लिए उबाल रहा था। इसके पास पहुंचकर लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे? लड़के के पास खाने का कुछ भी सामान न देखकर मजदूर ने पूछा, तुम मुझे कहां से खिलाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लड़के ने फौरन अपनी जेब से एक गंदा सा कपड़ा निकाला और इसे जमीन पर बिछाकर दुआ करने लगा। देखते ही देखते इसके कपड़े पर खाने की बहुत सारी चीजों के ढेर लग गए। बेचारा कोयले का मजदूर ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जब इस लड़के ने इसे खाने पर बुलाया तो वो जैसे ही खाने के लिए टूट पड़ा। इसने पहली बार पेट भर के खाना खाया था। खाना खाने के बाद वो लड़के से बोला, मेरे पास एक पुरानी टोपी है। इस टोपी में एक खास बात है कि अगर इसे सर पर रखकर थोड़ा सा घुमा लो तो 12 सिपाही निकलते हैं जो चार तरफ से गोलियों की बारिश करते हैं और उनके आगे कोई नहीं ठहर सकता। अब मुझे इस टोपी की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे गोलियां नहीं बल्कि खाना चाहिए। मैं तुम्हें ये टोपी दे सकता हूं अगर तुम अपना ये कपड़ा मुझे दे दो, क्योंकि इस जंगल में मेरे लिए अच्छा खाना कभी नहीं बन सकता। लड़के ने बगैर किसी मुजाहमत के इस मजदूर की बात मान ली। इसकी टोपी लेकर अपना कपड़ा इस मजदूर को दे दिया और वहां से रवाना हो गया। थोड़ी दूर पहुंचकर उसने अपने पुराने थैले को थपथपाया तो इसमें से 6 फौजी इसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने उन्हें हुक्म दिया कि वो सब इस मजदूर से इसका कपड़ा वापस ले आएं। 6 फौजी कुछ ही मिनटों में इसका कपड़ा लेकर उसके सामने आ गए। लड़का अपना जादुई कपड़ा लेकर आगे बढ़ा, फिर दरख्त के नीचे बैठकर रात गुजारी और सुबह सवेरे किस्मत आजमाने निकला। थोड़ी दूर जाकर इसे कोयला बनाने वाला एक मजदूर मिला जो पहले 2 मजदूरों की तरह आलू उबाल रहा था। इस मजदूर ने लड़के को बगैर मसाले के अलिफाबली आलू खाने की दावत दी। लड़के ने शुक्रिया अदा किया और फिर इसे अपनी तरफ खाने के लिए बुलाया। लड़के ने अपना कपड़ा जमीन पर बिछाया और दुआ करने लगा। कुछ ही देर बाद इस कपड़े पर खाने की बहुत सारी चीजें आ गई। सब कुछ देखकर इस मजदूर को बहुत हैरानी हुई। मजदूर ने लड़के के साथ पेट भर के खाना खाया और इस मजेदार खाने के लिए लड़के का शुक्रिया अदा किया। जब लड़का खाना खाकर जाने लगा तो इस मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना मेला सा कपड़ा दे दो तो मैं इसके बदले तुम्हें अपना बगल दे सकता हूं।
इस बगल की खासियत यह है कि अगर तुम गुस्से से इसे बजाओगे तो इसकी आवाज से मकानों और दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी, और जब तुम इसे बजाना बंद करोगे तो दीवारें गिरना भी बंद हो जाएंगी। लड़के ने बगैर कुछ कहे अपना कपड़ा दे दिया। इस मजदूर को दे दिया गया और उससे इसका बगल ले लिया। थोड़ा आगे जाकर उसने पहले की तरह अपने थैले को थपथपाया तो 6 सिपाही इसका कपड़ा लेकर वापस आ गए। अब लड़के ने सोचा कि अपनी मेहनत और अक्ल से वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका है, अब मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। इसके अलावा वो ये जानने के लिए भी बेचैनी महसूस कर रहा था कि इसके दोनों बड़े भाई किस हाल में हैं। कई दिनों के सफर के बाद वो अपने गांव पहुंचा, जहां इसके दोनों बड़े भाइयों ने चांदी और सोने की दुकानें खोल ली थीं और रहने के लिए खूबसूरत घर बना लिए थे। दोनों आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। जब वो अपने फटे पुराने कपड़ों में अपने बड़े भाई के घर गया तो उसके भाई ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरे भाई ने भी इसके गंदे और पुराने कपड़ों का मजाक आड़ा और कहा, क्या तुम वही भाई हो जिसने सोने चांदी को देखकर नाक चढ़ाई थी और हमें छोड़कर चला गया था कि मैं तो राजा बनने जा रहा हूं और अब भिखारी बनकर हमारे सामने खड़ा है। ये कहकर उसका हाथ पकड़कर इसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। इसे अपने दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। इसने अपने कंधे से अपना पुराना बैग उतार कर पीठ पर मारा। फिर 6 फौजी आगे आकर खड़े हो गए। लड़के ने कहा, मेरे दोनों भाइयों की इतनी पिटाई करो कि छठी का दूध याद आ जाए। फौजियों ने ऐसा ही किया। दोनों भाइयों की हालत बारी कर दी। जब वहां के लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की तो फौजियों ने उनकी भी पिटाई कर दी। दोनों भाई सोने चांदी के मशहूर दुकानदार थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई की शिकायत बादशाह के पास कर दी। बादशाह ने इस लड़के को पकड़ने के लिए एक सेनापति को अपने दस्ते के साथ बाहर जाने का हुक्म दिया। कहा गया कि इस अमन को बर्बाद करने वाले को शहर से निकाल दिया जाए, मगर लड़के के सिपाहियों ने सिपासालार और उसके फौजियों को इतना धकेल दिया कि वो खून आलूद हो के पीछे हटने पर मजबूर हो गए। बादशाह ने कहा कि ये बदतमीज लड़का अभी तक काबू में नहीं आया है और अगले दिन इसके खिलाफ एक और बड़ा दस्ता भेजा गया। नौजवान ने उनके खिलाफ और भी ज्यादा मर्द लगा दिए और जल्दी से अपनी टोपी अपने सर पर 2 बार घुमा दी और भारी तोपें बजने लगे। बादशाह के लोगों को पीटा गया और भगा दिया गया और अब उसने कहा, मैं तब तक समझौता नहीं करूंगा जब तक बादशाह मुझे अपनी बेटी को बीवी के तौर पर नहीं देता, और मैं इसके नाम पर पूरे मुल्क पर हुकूमत करूंगा। इसने बादशाह को इस बारे में बता दिया और बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, जरूरत पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अगर मैं सुकून चाहता हूँ और अपने सर पर ताज रखना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हें इसके साथ देना ही पड़ेगा। शादी की खुशियां मनाई गईं, लेकिन बादशाह की बेटी इस बात से नाराज थी कि इसका शौहर एक आम आदमी है जिसने एक बोसीदा टोपी पहनी हुई है और एक पुराना थैला रखा है। वो इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। रात इसके जहन में यही चल रहा था। इसी बात की फिक्र इसे परेशान करती थी कि ये आखिरकार ये कैसे पूरा करेगी। वो सोचती रही और फिर उसके जहन में एक ख्याल आया कि क्या ये मुमकिन है कि इसकी हैरत अंगेज ताकतें इसी थल्ले में छपी हों। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने दिमाग में एक मंसूबा बनाया। जब मौका मुनासिब आया और लड़के का दिल नरम हुआ तो इसने बड़ी मोहब्बत और दर्द भरे लहजे में कहा, प्यारी, तुम इस भद्दे थल्ले को अलग क्यों नहीं कर देती? ये तुम्हें इतना बिगाड़ देता है कि मैं तुम्हारे साथ होने में शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। ये तुम्हें इतना बिगाड़ देता है कि मैं तुम्हारे साथ होने में शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। लड़के ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये कोई आम तेला नहीं है, ये मेरा सबसे बहुत बड़ा खजाना है। जब तक ये मेरे पास है, जमीन पर कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुझे डरा सके। ये कहते ही इसने थैले की हैरत अंगेज ताकतें दिखाईं। इसकी आंखों में फख्र और अल्फाज में बेहद यकीन था। औरत ने बड़ी चालाकी से अपने चेहरे पर मोहब्बत और कुर्बानी का इजहार किया और फिर अपने आप को इसकी बाहों में डाल दिया जैसे वो इसे मोहब्बत से चूमने वाली हो। लेकिन ठीक इसी लम्हे इसने बड़ी होशियारी से इसके कंधे से थैला निकाल लिया और फौरन वहां से भाग गई। जैसे ही वो अकेली हुई, इसने थैले को थपथपाया और इसमें छपी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को पकड़ी और इसे शाही महल से बाहर निकाल दें। सिपाहियों ने इसकी बात मान ली और इसे महल से बाहर निकाल दिया, मगर उसकी जुल्मत यहां खत्म नहीं हुई। इसने अपने पीछे और भी जंगजू भेजे ताकि वो इसे मुख से बहुत दूर ले जाएं, ताकि वो कभी वापस न आ सके। अब लड़का बेबस हो चुका था, लेकिन इसके पास अब भी वो छोटी सी टोपी थी जिसमें एक जबरदस्त ताकत थी। इसने जल्दी से अपने बंधे हुए हाथों को आजाद किया और टोपी को 2 बार घुमाया।
जैसे ही इसने ये किया एक खौफनाक नूलाइन गुड़गड़ाहट हुई, तोपों की आवाजें सुनाई दी और सब कुछ बर्बाद होने लगा। बादशाह की बेटी खौफजदा हो गई। अब इसे समझ आ गया कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। अपने घमंड और लालच में इसने इस शख्स के साथ धोखा किया था जिसकी ताकतें नाकाबिल यकीन थीं। आखिरकार वो खुद उसके सामने आई और रहम की भीख मांगने लगी। इसने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा, मुझे मुआफ कर दो, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ पूरी वफादारी से रहूंगी। बरा करम मुझे एक और मौका दो। वो थोड़ा नर्म हुआ और उसने इसे मुआफ कर दिया। नूलाइन वो इसके साथ दोस्ताना रवैया रखने लगा और मोहब्बत में बहता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी बातों में आ गया। शहजादी बहुत चालाक थी। इसने धीरे धीरे इसको यकीन दिलाया कि अगर किसी के पास इसका ताकतवर थैला भी आ जाए तो भी वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि वो अपनी पुरानी टोपी पहने रहे। जब शहजादी ने इस राज को जान लिया तो उसने मौका का इंतजार किया। जैसे ही लड़का गहरी नींद में सो गया, इसने चुपके से इसकी टोपी उतारी और इसे महल में फेंक दिया। लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि लड़के के पास एक और पुरस्रार चीज थी, बगल जैसी। इसने टोपी के बगैर खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया। फिर गुस्से में आकर अपने बगल को पूरी ताकत से फूंका और जो हुआ वो यकीन करने के काबिल नहीं था। पूरा शहर हल गया, कले गिरने लगे, दीवारें टूटने लगे, महल खंडर बन गए और गांव बर्बाद हो गए। बादशाह और उसकी बेटी दोनों ही महल के मलबे में दफन हो गए। अगर वो थोड़ा और बगल बजाता तो सारी जमीन उसके कंट्रोल में आ जाती, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाता। और आखिर में जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने खुद को पूरे मुल्क का बादशाह मान लिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो भी देखें। नूलाइन लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर दबाएं।